Good morning students. Today is 8th May and this is maths lecture for class 12 students. We are going to deliver 27th lecture on topic relations and functions. In today's lecture we will discuss binary operation. So today at first we will recall commutative and associative conditions for a binary operation. So suppose we have a binary operation given. Binary operation is given and we have to check, suppose on operation A cross A to A some binary operation is given and we have to check that whether it is commutative or not. So if A operation B equals to B operation A implies binary operation is commutative. Binary operation is commutative. I think this we have already discussed in the last lecture. Okay, why the condition for binary operation to be commutative. So if any binary operation follows this condition, A asterisk B equals to B asterisk A, we will say that yes, binary operation is commutative. Okay, now the second thing we need to discuss for associativity. So for a binary operation is given if and the binary operation on A cross A to A. So if A operation B operation C equals to A operation B operation C, if this condition exists, then we will say that binary operation is associative. Binary operation is associative, right? And obviously this A, B, C all belongs to A given set. Fine. So students, these are the conditions for binary operation to be commutative, first condition, and this is the second condition for binary operation to be associative. One thing you must notice here, that we have placed bracket symbol. So what is meaning of this? Suppose we have to find LHS, we have to evaluate LHS, then at first we will operate bracket elements. Okay, at first we will operate A asterisk B, and whatever output we will get for A asterisk B, then that output will be operated with C. Okay, suppose by operating A asterisk B we are getting D, so we will operate D asterisk C further. Okay, similarly on right hand side, at first we will operate B asterisk C, this bracket element B asterisk C, and then whatever output you will get for B asterisk C, that will be operated with A. Suppose you are getting B asterisk C equals to F, output F, so we will operate A asterisk F then. Okay, this is the meaning of bracket element. And after operations, if this is equals to this exists, then we will comment binary operation is associative. And if we see, we will see that the output of LHS is not equals to output of RHS, then simply we will comment that binary operation is not associative. Is that clear? Okay, so now we will solve some problems. So today we will start discussion from question number 2 onwards, exercise 1.4 NCERT. See question number 2. For each operation, this symbol asterisk defined below, determine whether this is binary, commutative or associative. That means for each of the operation given, we have to check that whether given operation is binary, commutative or associative. Okay, so let us start with first one. On Z, define A asterisk B equals to A minus B. A operation B equals to A minus B. On Z, that means on integers. So your first part is on Z, define A operation B equals to A minus B. So we will find C operation D. Okay, I have considered some another name, C operation D, where C and D belongs to Z. C and D belongs to Z. Just like you can consider A equals to 2, B equals to 3. 2 and 3 is integer, and we can find output. We can consider A equals to 5, B equals to minus 7, and we can operate 5 asterisk minus 7. But we have to show in general, so that's why we are considering a general inputs C and D,
and simply we will say that C and D belongs to Z, integers. So suppose this operation is given, and based on this operation we have to write output of C asterisk D. How we will write? See, C is in place of A, so again on right hand side C is in place of A and D is in place of B. So C asterisk D is what we will write? C minus D. Is that clear? It is very easy to understand. Simply we have to check that the position of elements, C is in position of A and D is in position of B. So on right hand side, as C is in position of A, so in place of A we will write C. D is in position of B, so in place of B we will write D. Is that clear? C asterisk D is C minus D. Let it be condition 1. Again, now we will interchange the position and we will write D asterisk C. See, D is in position A and C is in position B. So on right hand side, for A we will write D, minus for B second entry, B is second entry. So what is your second entry? C. We will write C. Is that clear? Now we can see very clearly from 1 and 2. From 1 and 2, C minus D is not equals to D minus C. C minus D is not equals to D minus C. Obviously this is C minus D and this is D minus C, so output is not same. So this is not equals to D minus C, implies C asterisk D is not equals to D asterisk C. So operation is not commutative. This implies given operation is not commutative. Given operation is not commutative. ओके, कुछ बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप जो इनपुट ले रहे हो C और D, बस ये ध्यान रखो कि C फर्स्ट पोजीशन पर है तो फर्स्ट पोजीशन पर A है, मतलब अब हमें A की जगह C लिखना है, और D सेकेंड प्लेस पर है तो सेकेंड प्लेस पर कौन है? B, तो तुम B की जगह पर D लिखोगे, बस यही बता रहा हूँ, ठीक है? C माइनस D। उसी तरह से यहाँ D फर्स्ट प्लेस पर है तो A फर्स्ट प्लेस पर है, जहाँ भी हमें फर्स्ट प्लेस मिलेगा वहाँ D यूज़ करना। C सेकेंड प्लेस पर है, सेकेंड प्लेस पर कौन है? B, अब B कहीं भी मिलेगा तो अब C यूज़ करना। ओके, वेरी इजी। चलो अब इसको एसोसिएटिव के लिए देख लें। फॉर एसोसिएटिविटी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हम लोग मार्क कर देंगे कि C, D बिलोंग्स टू Z लिख देना, बिलोंग्स टू Z, C, D बिलोंग्स टू Z, है ना, Z पर डिफाइन। चलो अब एसोसिएटिविटी के लिए कंसिडर करते हैं। तो लेट एसोसिएटिविटी के लिए हमें 3 कंडीशंस चाहिए होते हैं जो तुमने देखा होगा A, B एंड C। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ लेट C, D एंड F बिलोंग्स टू किस पर है? Z पर है। तो हमने मान लिया कि C, D एंड F बिलोंग्स टू इंटीजर है। नाउ वी विल फाइंड C एस्ट्रिक D एस्ट्रिक F। पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो C एस्ट्रिक D क्या होगा? ऑपरेशंस तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ है, A एस्ट्रिक B इज A माइनस B। तो C एस्ट्रिक D, C फर्स्ट एंट्री है, क्या लिखोगे इसको? फर्स्ट एंट्री। B सेकेंड एंट्री है तो सेकेंड एंट्री की जगह D लिखेंगे, C माइनस D एस्ट्रिक F। ओके, अब आप इसको C माइनस D को A समझो और इसको B समझो। तो A एस्ट्रिक B क्या लिखा है? A माइनस B। तो A एस्ट्रिक B इज A माइनस B। A क्या है? A माइनस B F। सो व्हाट यू विल गेट? C माइनस D माइनस F। तो तुम्हें C एस्ट्रिक D एस्ट्रिक F मिला, C माइनस D माइनस F। लेट इट बी कंडीशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 तो इस क्वेश्चन में लिया है। नाउ अगेन हमने ये तो फाइंड कर लिया, अब ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज करते हैं। C एस्ट्रिक लास्ट 2 पर ब्रैकेट डालते हैं इस तरीके से, C एस्ट्रिक D एस्ट्रिक F। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया, अब इसको फाइंड करते हैं। इक्वल्स टू फर्स्ट एंट्री तो एज इट इज़ अभी रहेगी, ब्रैकेट एलिमेंट ऑपरेट होगा। तो D एस्ट्रिक F, इसको A एस्ट्रिक B समझो, तो क्या लिखा है वो? A माइनस B, तो इसको क्या लिखोगे? D माइनस F। समझ गए? अब इसको A समझें और इसको B समझें, तो A एस्ट्रिक B, A एस्ट्रिक B, बात समझ में आ रही है? A एस्ट्रिक B क्या है? A माइनस B, तो A माइनस B की जगह पर क्या है? D माइनस F। समझ गए? तो ये तुम्हें क्या मिलेगा? C माइनस D प्लस F। इसको मान लो फोर्थ कंडीशन, एंड दिस इज C एस्ट्रिक D एस्ट्रिक F।
अब हमें देखना है थर्ड एंड फोर्थ का आउटपुट सेम है क्या। तो थर्ड पर आउटपुट देखो आप c माइनस डी माइनस एफ है, यहाँ पर क्या लिखा है c माइनस डी प्लस एफ है, सेम नहीं है, f का साइन चेंज हो गया है। तो वी विल कमेंट नाउ, दिस इम्प्लाइज c एस्ट्रिक d एस्ट्रिक f नॉट इक्वल्स टू c एस्ट्रिक d एस्ट्रिक f। ठीक है, यही कंडीशन होता है एसोसिएटिविटी का। अब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव होने के लिए यहाँ इक्वल होना चाहिए था, ये नॉट इक्वल है, दिस इम्प्लाइज नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। सो एट लास्ट वी विल कमेंट दैट दिस इम्प्लाइज गिवन ऑपरेशन इज neither commutative nor एसोसिएटिव। बात समझ में आ गई। सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ये थर्ड और सिक्स और इसके अलावा जितने भी सेकेंड पर जो भी पार्ट्स होंगे आप उन्हें आंसर कर लेना, होमवर्क में आप उन्हें सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब कुछ और नए प्रॉब्लम्स देखें। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये कोई सिंबल दिया हुआ है, ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। मतलब इसको मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी बताया जा रहा है इस ऑपरेशन को। तो ए ऑपरेशन बी इज मिनिमम ए कॉमा बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ दिस ऑपरेशन। ओके, तो देखो यहाँ हमें ऑपरेशन टेबल बनाने की बात कही गई है। ऑपरेशन टेबल हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो इस ऑपरेशन टेबल को बनाने के लिए यहाँ पर ये सिंबल रखते हैं और इसको ऐसे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। फिर जितनी एंट्री जो सेट में है वो सारी एंट्री हम लोग वर्टिकल भी दिखाएंगे और हॉरिजॉन्टल भी दिखाएंगे। ये देखो हमने वर्टिकल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंट्री दिखा रहे हैं और इधर ये वर्टिकल एंट्री, इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है दोनों साइड। इसके बाद आप इसमें लाइंस की अरेंजमेंट करके इन्हें सेपरेट कर लें इस तरीके से। यहाँ पर भी लाइक दिस हम इन्हें अरेंज कर लें। देखो बात समझ में आ गई। वीडियो पॉज करके आप दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा ये टेबल कैसे बना। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ए ऑपरेशन बी की बात कही गई है, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, तो हम लोग इस तरह से जाएंगे, ऐसे जाके ऊपर जाना है और आप इसको पढ़ोगे 1 ऑपरेशन 1, 1 ऑपरेशन 1, 1 ऑपरेशन 2, 1 ऑपरेशन 3, 1 ऑपरेशन 4, 1 ऑपरेशन 5, लाइक दिस। और करना क्या है, ए ऑपरेशन बी, तो मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो इस बॉक्स में फिल करना है। 1 ऑपरेशन 1, तो 1 और 1 में मिनिमम कौन है 1, 1 ऑपरेशन 2, तो 1 और 2 में मिनिमम कौन है 1, 1 ऑपरेशन 3, तो 1 एंड 3 पर मिनिमम कौन है 1, 1 ऑपरेशन 4, मिनिमम कौन है 1। कहने का मतलब कि जब आप 1 ऑपरेशन 4 लिखते हो तो आपको इन दोनों में मिनिमम कौन है 1, ये लिखना होता है। वही बात बताया जा रहा है। देखो 1 ऑपरेशन 5, 1 ऑपरेशन 5 क्या लिखोगे, इन दोनों में मिनिमम कौन है 1, तो इस बॉक्स में लिख देना है। बात समझ गए। चलो फटाफट आगे फिल करते हैं। 2 ऑपरेशन 1, 1, 2 ऑपरेशन 2, 2, 2 और 2 में मिनिमम 2 है, 2 ऑपरेशन 3, 2, 2 ऑपरेशन 4, 2, 2 ऑपरेशन 5, 2। बात समझ में आ गई। चलो आगे फिल करें। 3 ऑपरेशन 1, 1, 3 ऑपरेशन 2, 2, 3 ऑपरेशन 3, 3, 3 ऑपरेशन 4, 3, 3 ऑपरेशन 5, 3, मिनिमम फिल करना है। 4 ऑपरेशन 1, देखो ये 4 ऑपरेशन 1, 4 और 1 में मिनिमम कौन है, 4 और 1 में मिनिमम कौन है 1, तो यहाँ क्या भरेंगे 1। 4 ऑपरेशन 2 क्या फिल होगा 2, 4 ऑपरेशन 3, 3, 4 ऑपरेशन 4, 4, 4 ऑपरेशन 5, 4, 4 ऑपरेशन 5, 4 और 5 पर मिनिमम कौन है 4, तो यहाँ फिल कर दिया। 5 ऑपरेशन 1, 1, 5 ऑपरेशन 2, 2, 5 ऑपरेशन 3, 3, 5 ऑपरेशन 4, 4 एंड 5 ऑपरेशन 5, 5, 5 ऑपरेशन 5 इज 5, 5 और 5 में मिनिमम कौन है 5 ही है, 5 लिख दिया। तो ये दिस इज ए आवर ऑपरेशन टेबल, इस तरह से ऑपरेशन टेबल बनाया जाता है।
बात समझ में आ गई? सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑपरेशन टेबल, दिस इज रिक्वायर्ड ऑपरेशन टेबल। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखें। See, this is fourth question. Consider a binary operation on the set 1 2 3 4 5 given by the following multiplication table। एक टेबल यहाँ पर दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 पर। तो देखो इधर 1 2 3 4 5 लिखा है, इधर भी 1 2 3 4 5 लिखा है, और यहाँ पर कुछ एंट्रीज दी हुई है। तो ऑलरेडी ये टेबल बना हुआ है किसी ऑपरेशन के लिए। अब इस टेबल को देख करके हमें कंप्यूट करना है 2*3*4 क्या आएगा, इस तरह से ब्रैकेट एलिमेंट के साथ, एंड ये क्या आएगा। तो चलो आंसर करें फर्स्ट। इस टेबल से आउटपुट कैसे रीड किया जाता है? तो देखो 2*3 यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं 2 ऑपरेशन 3 क्या आएगा, तो ये 2 की लाइन है ऐसे जा रही है 2 ऑपरेशन 3, तो दोनों यहाँ पर क्या मिला, ये देखो 2 ऑपरेशन 3। इस बॉक्स पर पहुँचे, इस बॉक्स में क्या लिखा है 1, तो इसके आउटपुट आ गई 1, ऐसे रीड करना है। तो वी हैव टू फाइंड 2*3*4, तो यू लाइक 2*3, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर इसको इवेलुएट करना है। तो 2*3 क्या है 1 है, 1 लिख लो, फिर आगे क्या है *4। अब हमें 1 ऑपरेशन 4 देखना है, तो 1 यहाँ पर जाएंगे, 1 ऑपरेशन 4, 1 ऑपरेशन 4 क्या मिला यहाँ पर 1 मिला, तो अब इसको 1 लिखेंगे। तो फर्स्ट का 2*3*4 का आउटपुट 1 आ जाता है। बात समझ में आ गई? नाउ वी विल स्टडी दिस, हमें ये भी इवेलुएट करना है। तो 2*3*4 4, तो 2* पहले ब्रैकेट एलिमेंट इवेलुएट होगा, 3*4, ये देखो 3*4 कौन मिला 1 मिला, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, 2*1 आ गया, ये ब्रैकेट नहीं लगा हो गया, ये 2*1 है, क्या है ये 2*1। अब 2*1 2 ऑपरेशन 1, तो 2 ऑपरेशन 1 2 ऑपरेशन 1 क्या मिला 1 मिला, तो ये आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में इसका भी आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है। अब देखो सेकेंड पार्ट तुमसे पूछता है कि इज एस्ट्रिक कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है? तो कम्यूटेटिव के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि हेयर 2*3 कितना है, तो 2*3 देख लो क्या है 1 आया, एंड 3*2 कितना है, तो 3 यहाँ पर आ गया, 3*2 ये भी 1 है। दिस इम्प्लाइज 2*3 इक्वल्स टू 3*2, ये आ रहा है। सिमिलरली फॉर अदर एंट्री वी कैन कंसिडर, सिमिलरली फॉर अदर एंट्री we can consider, implies yes it is commutative, yes it is commutative। बात समझ में आ गई? चलो थर्ड पार्ट देखें, यहाँ मैं आंसर करता हूँ थर्ड पार्ट पर क्या लिखा है, कंप्यूट 2*3*4*5, तो 2*3 तो 2 पर जाओ, 2*3 कितना मिला 1, यहाँ लिख देंगे 1। 4*5 4 पर जाओ, 4*5 क्या मिला 1, यहाँ 1 लिख देंगे। 1*1 1 ऑपरेशन 1 क्या मिला 1 लिख देंगे, यह आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि टेबल से आउटपुट कैसे रीड किया जाता है, एंड ब्रैकेट एलिमेंट को पहले इवेलुएट करते हैं। ओके, सो in today's lecture we have discussed how to check commutative and associative property of binary operation, commutative and associative of binary operation, and how to prepare table, operation table, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑपरेशन टेबल से आउटपुट कैसे स्टडी किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट करना फेयर नोटबुक में, मैं आज अपलोड कर दूंगा एक्सरसाइज और उसके आंसर की। So that's it for today. Thank you.